So let me start our question. I would give you an overview कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, फिर हम उसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे. अब आपको मैं एक यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करके दूंगा. स्टार्ट में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. वन वुड बी योर इनकम स्टेटमेंट एंड द सेकंड वुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट. अब हमने पहले सारे डेटे से कैटेगराइज करना है कि विच वन डेटा इज रिलेटेड विद योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड विच डेटा इज रिलेटेड विद योर इनकम स्टेटमेंट. अब इसमें फर्दर कैटेगरीज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि यू कुड बी आस्क्ड टेल अस अबाउट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टेल अस अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेकंड रिक्वायरमेंट. थर्ड रिक्वायरमेंट कुड बी योर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वो कह देता है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन इट वुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपने सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है. अपने तौर पे ही आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना है, एंड देन यू हैव टू रीच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So that would be the possibility. Now I'm just giving you a differentiation from the first कि इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को अलग करें और बैलेंस शीट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करें. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. रेवेन्यूज, सेल्स रेवेन्यू, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट. सो वी आर writing income oblique statement I oblique S. Work in process inventory December 31st, work in process inventory December 01. अब ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम दिसंबर के मंथ की इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि आपके पास दिसंबर का स्टार्ट और दिसंबर का एंड दिया गया इसमें. देन इट वुड बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स sold, cost of goods sold, then selling and administrative expenses. These are your non-manufacturing expenses which would be the part of your income statement. So I should write income statement part. Then income tax expense 40%. This is also related with your income statement. Then purchase of raw material. Purchase of raw material is your cost of goods sold statement, cost of goods sold statement. Then raw material inventory, you have cost of goods sold statement. Then it is raw material inventory December 01, cost of goods sold statement. Then direct labor is a cost of goods sold statement. Utilities plant, cost of goods sold statement. Depreciation is your cost of goods sold statement. Then finished goods inventory, cost of goods sold statement. Finished goods inventory, cost of goods sold statement. Indirect material, cost of goods sold statement. Indirect labor, cost of goods sold statement. Other manufacturing overheads, cost of goods sold statement. So you can see these are all the components which are related with your cost of goods sold statement, whereas you have basically three components: your sales, your selling and administrative expenses, income tax. These are related with your income statement. Now if the examiner asks from you that calculate the net income, even he or she doesn't ask from you calculate cost of goods sold statement, but still for the calculation of your net income you have to prepare income statement, cost of goods sold statement, क्योंकि आपने जाहिर है उसको सेल्स में से cost of goods sold को माइनस करना है. So let me start the total structure of our cost of goods sold statement. उसके सारे के सारे पहले components लिख लिए जाएं. Components लिखने के बाद we will put the data which is related to our question. So first I need to write, it should be the name of the company, and it is like
X, Y and Z. We are preparing cost of goods sold statement, and the time period is December 31st 2008. This is the complete title of our cost of goods sold statement. Then we have to make the proper lines. It should be prepared like in columns. आपके पास कॉलम इसके 3 कॉलम बनाना चाहें 3 बना लें, 4 कॉलम बनाना चाहें 4 बना लें. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके पास जो फाइनल डेटा होगा उसको आपने नेक्स्ट शिफ्ट करना होगा अपने जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. वी हैव फर्स्ट वन, डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल, दिस वुड बी योर टाइटल. डायरेक्ट मटेरियल ये आपका एक टाइटल होता है. इसमें फर्दर हम देखते हैं कि कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज आती हैं. यू हैव ओपनिंग रॉ मटेरियल. वी ऑलरेडी नो कि ओपनिंग रॉ मटेरियल आपका क्या होता है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. वी एड परचेजेस. परचेजेस आपकी होती हैं जो आप उसमें ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स आफ्टर एडिंग योर परचेजेस इट बिकम्स मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. अब आपके पास टोटल मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए. सो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज ये होगा. इसमें से आप माइनस कर देंगे या लेस कर देंगे अपना एंडिंग मटेरियल. इट इज दैट मटेरियल विच इज नॉट बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. आपने इसको वर्क इन प्रोसेस में नहीं लेके गए. आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख का पड़ा हुआ था, 80,000 का यूज कर लिया, 20,000 का यूज नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो आपका एंडिंग मटेरियल होगा. इसमें फिर आप ऐड कर, आपके पास यहां पर फिर आएगा मटेरियल यूज्ड. अब ये आप कैलकुलेट एक्चुअली करना चाह रहे थे कि आपने मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में कितना लेके गए हैं. देन वी विल ऐड डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर को आपने ऐड किया इसमें, प्लस आप इसमें कैलकुलेट करेंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस. ये तीनों आप इसमें ऐड करेंगे. इनकी फर्दर डिटेल्स मौजूद है, उन डिटेल्स को आपने यहां पे मेंशन करना है. अब आप याद करें थोड़ा सा कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन में वो चीजें दी गई थी ताकि हम यहीं पे उनको ऐड अप कर लें. आपके पास यूटिलिटीज प्लांट, इसको अगर आप हाईलाइट कर दें, यू हैव यूटिलिटीज. Utilities, this is your utilities plant. Then depreciation plant. Depreciation plant, because this is your factory overhead expense, part of your manufacturing. ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है. दे आर नॉट डायरेक्टली engaged but still they are considered as a part of your product expense. Then indirect material.
indirect labor and then other FOH expenses. अब यहां तक आपने एक पेज आपके पास कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड आप जितने भी आइटम्स लिख सकते थे आपने यहां पे वो मेंशन कर दिए. वी शुड गो बैक अगेन एंड वी कैन सी के कौन सा आपका डाटा किस से रिलेटेड था. अब आप देखें आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, this one is related 1,80,000 with your first page. Raw material opening inventory 40,000, ending inventory 25,000. आपके पास ये भी available. Then direct labor, that is also available. Then these are your FOH expenses. It starts from here, utilities, plant, depreciation, plant. So these are the two components which are related with your FOH expenses. Then indirect material, indirect labor and manufacturing overheads. These are the part of your FOH expenses. So at this stage we have 5 components of your FOH and we have raw material purchases, raw material opening inventory and raw material ending inventory. So these are the components which are related with our first page. So we can add up all these components in our question what we have already mentioned here. Opening raw material we had 40,000. 40,000 was the opening raw material and then we have purchased 1,80,000 of the material. We had material available for use 2,20,000. So that was the total material that was available for use. हमारे पास पिछला मटेरियल पिछले महीने का पड़ा हुआ था जो हमारा इस महीने का ओपनिंग मटेरियल बन गया और हमने देखा कि दैट मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर प्रोडक्शन प्रोसेस, वी हैव टू परचेज फर्दर मोर. तो आपने 1,80,000 का और परचेज किया तो टोटल आपके पास 2,20,000 का मटेरियल अवेलेबल था यूज होने के लिए. एंड महीना कंप्लीट हुआ, it was December 31st. We have to see how material is left which is not being used during the production process, and we can see that 25,000 of the material 25,000 of the material was not being used. अब वो आप उसमें से माइनस कर देंगे. मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आपके पास 2,20,000 का था. एंडिंग मटेरियल जो आपका यूज नहीं हुआ दैट वाज 25,000, वो आपने माइनस किया उसमें से. मटेरियल यूज कितना अब आपके पास आ चुका है इसको आप नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज 1,95,000. अब ये आपके पास वो मटेरियल है जो आपने यूज किया है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान. उसके बाद डायरेक्ट लेबर आपके पास थी, वो डायरेक्ट लेबर आपके पास 2 लाख रुपीस की थी, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे. So you add up material used and direct labor, it becomes your prime cost. Now we have to add up our FOH expenses. FOH expenses आपके कौन कौन से हैं? You can see you had FOH expenses 40,000 of utilities plant, 40,000 of utilities plant, then depreciation plant 60,000, then indirect material it was 10,000, then indirect labor you had 15,000 जो आप सुपरवाइजर्स वगैरह को देते हैं. then other FOH expenses these were 80,000. So that was a total 5 components of your FOH. You will add up all these FOH expenses into the next column and their total amount is 2,05,000. So you calculated the 3 components which is related with your total manufacturing cost. A first step, you add up your material, labor and FOH. Material means that that material is related which is being used in your production process. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड FOH, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आएगी एंड दैट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 6 लाख.
6 lakh is your total manufacturing cost. Should I write here? Total manufacturing cost. So first step we have completed. यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया हुआ है. उसके बाद आपने नेक्स्ट अपना काम शुरू करना है. इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस भी ऐड करेंगे आप इसमें अपनी लेबर को भी वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री होगी, फिर फिनिश गुड्स का काम होगा, फिर एट द एंड हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड विच आइटम्स. यहां पर आप उनको डिडक्ट करते जाएं या उनको क्रॉस करते जाएं. यू हैव डन अप टू दिस. दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड. डायरेक्ट लेबर इज यूज्ड, utilities, plant, depreciation is used, indirect material, indirect labor and FH, other FH expenses, they are now used. अब इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से रह गए हैं? वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, देन FH, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग और एंडिंग, ये हमारे पास रह चुके हैं. तो फिर हम इनके लिए फर्दर नेक्स्ट अपना कॉलम बनाएंगे. सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट एरिया. आपके पास so let me start from here. We had total manufacturing cost and it was 6 lakh rupees. यहां पर मेंशन कर सकते हैं या आप नेक्स्ट कॉलम में मेंशन करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसमें फर्दर कौन कौन सी कैटेगरीज लेकर आनी है. अगर आप इसमें नहीं लिखना चाहते, यू कैन राइट इन द फाइनल कॉलम कि आपके पास ये एक सेपरेट कंपोनेंट था जिसको आपने यहां पे मेंशन किया. एंड देन वी विल ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अब आपके पास यहां पर जो एक टाइटल आएगा दैट वुड बी टोटल वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी वर्क इन प्रोसेस में लेके जा रहे हैं और यहां पर वो काम भी है जो ऑलरेडी आपका पिछले महीने का पड़ा हुआ था जिसको आपने नेक्स्ट मंथ पूरा करना है. तो टोटल वर्क इन प्रोसेस आएगा आपके पास. इसमें से माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस करेंगे. एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ जाएगी. अब आपने ये चीज भी कंप्लीट कर दी है. एक और स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आपने इसको भी कंप्लीट कर दिया हुआ है. हम एक दफ़ा पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम अपने जो कैलकुलेशंस हैं वो उसमें मेंशन करते रहेंगे. देन इसमें हम आप ऐड करेंगे ओपनिंग, फिनिश्ड, opening finished goods. These are those finished goods which are being already been done in the previous month but they were not yet sold. अब आपकी ये भी प्रिपेयर हो चुकी हैं, ये भी ऑलरेडी आपकी थी जो आपने सेल करनी थी, पिछले महीने वो सेल नहीं हुई थी. तो अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अब ये आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिनिश प्रोडक्ट हैं दैट यू कैन सेल इन द मार्केट. ये वो चीजें हैं जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं. अब आपके पास ये चीजें यहां पे कंप्लीट हो चुकी हैं. महीना खत्म हुआ तो आपने देखा कि हमारे पास ये चीजें सेल नहीं हुई, तो जो सेल नहीं हुई वो माइनस कर देंगे. माइनस एंडिंग फिनिश्ड गुड्स. So
So you will minus those finished goods which were not being sold at the end of the month. जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर आ जाएगी, जिसको आप कैलकुलेट इनफैक्ट करना चाह रहे थे, कि आपको पता चले कि आपने चीजें जो सेल की हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। दैट इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन, कि आपने देखना ये है कि यू हैव सोल्ड आउट योर प्रोडक्ट्स बट व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि जिनको आपने सेल किया है उनकी कॉस्ट कितनी थी। सो वी स्टार्ट राइट फ्रॉम हेयर कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है। सो लेट्स सी कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स मौजूद है। यू हैड 40,000 ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यू एड इट अप, टोटल आपके पास 6 लाख और 40,000 इनका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। अब एट द एंड ऑफ द मंथ कितना आपका काम बाकी रह गया हुआ था जो नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होगा, सो दैट वाज 30,000। 30,000 एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। नाउ यू हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 6 लाख एंड 10,000। ये वो चीजें हैं जो आपकी अब कंप्लीट हो गई हैं। आपने प्रोसेस इस महीने शुरू किया और उनको आपने कंप्लीट कर दिया। इसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी आपकी सेमी फिनिश थी, उन पर भी काम किया, प्लस आपने नई और चीजें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की बनाने के लिए वो भी की। तो आपने 6 लाख और 40,000 की चीजें कंप्लीट कर दी। यहां तक सेकंड आपने कंपोनेंट पूरा कर दिया। एक टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की आपने और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेकंड फॉर्म है यहां पर टेंस की, तो इसलिए मैन्युफैक्चर्ड मींस कि आपने उनको तैयार कर दिया हुआ है। सो वन इज आल्सो कंप्लीटेड। देन यू विल सी व्हाट वाज द ओपनिंग फिनिश गुड्स, दीज फिनिश गुड्स व्हिच वर नॉट बीइंग सोल्ड इन आवर प्रीवियस मंथ। हमारे जो लास्ट मंथ था उसमें जो सेल नहीं हो चुकी थी, दीज वर 20,000। 20,000 की ये वो प्रोडक्ट्स थी जो सेल नहीं हुई थी, हम इनको अब इस महीने सेल करेंगे। सो दैट वुड बी योर 6 लाख एंड 30,000। नाउ दीज आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो हैं अब आपके पास अवेलेबल है सेल होने के लिए। महीना कंप्लीट हुआ तो आपने देखा कि आपके पास बाकी कितनी चीजें अभी पड़ी हैं। December 31 आ चुका है। You want to calculate, you want to see कि how much products we have left now. You see 50,000 of the products that were not being sold in this month. आपके पास अब स्टोर में जो फिनिश प्रोडक्ट्स पड़ी थी December 31 को, वो आपने चेक की, वो 50,000 की थी जो अभी सेल नहीं हुई। तो फिर आपने सेल कितने की कर दी है? 6,30,000 में से आपने 5 लाख और 80,000 इनकी प्रोडक्ट्स आपने सेल कर दी हैं। सो द थर्ड कंपोनेंट इज आल्सो कैलकुलेटेड एंड दैट थर्ड कंपोनेंट वाज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको इनकम स्टेटमेंट में चाहिए था कंपोनेंट। इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड था, कि जिसकी वजह से आपने पूरे का पूरा प्रोसेस किया। वो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया रॉ मटेरियल की ओपनिंग से और आप पहुंच गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। यहां पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है।